हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर एक्सेलेटर्स। न्यूक्लियर एक्सेलेटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू एक्सेलेट particles to high energy. In our previous lectures, we had discussed about different nuclear reactions and also about radioactive substance. So whenever a nuclear reaction occur or any radioactive substance decay, then it produce particles like positron, electron, alpha particles, neutrons, deuterons, etc. These obtained particles as such have very small energy and are unable to produce further nuclear disintegration or artificial transmutation. As we have discussed in previous video about artificial transmutation, in which if a target nucleus is hit with a high energy projectile particle, then it will lead to a new nucleus with the emission of a new particle. So, for the purpose of these nuclear experiments, it is required to accelerate particles to high energy. So, that's why particle accelerators are used. So, depending upon the nature and limit to which these particle is to be accelerated, there are different types of particle accelerator, and these are classified as you can see here, these particle accelerators are divided into 4 groups. And first group of particle accelerator is electrostatic accelerator. In electrostatic accelerators, they provide very large potential difference, and the arrangement of discharge tube is such that the ion is allowed to move along very large potential difference that results in gain in their kinetic energy. You can see the example of these electrostatic particle accelerators are Van de Graaff generator and tandem accelerator, as shown in this picture. This is Van de Graaff generator, arrangement of Van de Graaff generator, and then next this is tandem accelerator. Tandem accelerator is in tandem accelerator, it is a two-stage accelerator in which particle is allowed to move along very large potential difference. So, if we discussed about these electrostatic particle accelerators, then their main disadvantage is that we have to deal with very large potential difference, which is very risky, and also there is a probability of leakage of charge. Now, the second group of particle accelerators are linear accelerators. In linear accelerators, particles travel along linear path so that they receive increase in their energy at given position along their path. So these accelerators are used to accelerate either electrons or protons. And the type of these and the example of these linear accelerators are drift tube accelerators, resonant cavity and waveguide accelerators. और आज हम जिस एक्सेलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज़ लीनियर एक्सेलेटर. Now the third group of particle accelerators are circular accelerators. In circular accelerators, charged particles makes many trips along circular path and receive some additional energy in each trip. So after sufficient number of circular trips made by the particle, these particles then extracted from the device and further used for nuclear experiments. And the example of these circular particle accelerators are the cyclotron, betatron, in which the particle which is to be accelerated is move along circular path. Now the fourth type of particle accelerators is synchrotron. These synchrotrons are the modification in third type of particle accelerators. These accelerators also provide phase stability, and the example of these fourth group particle accelerators are synchrocyclotron, electron synchrotron and proton synchrotron. So according to the nature of particle and the limit of energy required to which these particle is to be accelerated, these particle accelerators are classified as shown here in the picture.
So after the classification of all these particle accelerators, today we will discuss about linear accelerators. Now linear accelerator is a particle accelerator in which particle accelerate along the straight path and receive an addition in their kinetic energy in between the path along which it is traveling. Ising was the scientist who first invented these linear accelerators in year 1925. So linear accelerators are accelerator in which charged particle travel along a straight line by the application of alternating electric field which is produced from high frequency oscillator. And these particle accelerators have further types which are drift tube accelerators and waveguide accelerators. And this picture indicates the drift tube linear accelerators. So before discussing about how these drift tube linear accelerator works, let's see the construction of this linear accelerator. This linear accelerator consists of cylindrical metallic tube. As you can see here, these are the cylindrical metallic tube having gap in between the successive cylindrical metallic tubes. Now see here, these cylindrical metallic tubes are marked with number 1, 2, 3, 4, 5 and so on. The particle travel along the axis of this cylindrical tube and is emitted from a ion source as shown in the picture. इसी के साथ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सिलेंड्रिकल ट्यूब ली गई हैं हेयर कैन सी दीज सिलेंड्रिकल ट्यूब्स आर इंक्रीजिंग इन देयर लेंथ. देखिए सेकेंड ट्यूब इज़ longer than the first tube and the third tube is longer than the second tube and fourth tube is longer than the third tube. So the arrangement of this linear drift tube accelerator is such that the cylindrical metallic tubes are in increasing length. Now these metallic tubes are further connected with high frequency oscillator. And how these are connected with high frequency oscillator. Now if I mark this is 1, this is 2, 3, 4 and 5. Now note here, first, third, fifth tubes are connected with, see here, this is first, this is third and this is fifth, and these tubes are connected with one terminal of, as you can see, these are connected with one terminal of high frequency oscillator. And now similarly, let's see here, now drift tubes which are marked as here 2, 3, 4 and 5. Tubes which are second, fourth, sixth are connected with the other terminal of this high frequency oscillator. As you can see here, this is second, this is fourth and this is sixth. Now these are connected with the other terminal of this high frequency oscillator. This high frequency oscillator provides AC signal and this arrangement is such that if at a single time, if 1, 3, 5 is positive, cylindrical tubes are positive, then at the same time 2, 3, 4 cylindrical tubes will be negative. In the particle which is emitted from this source as shown by yellow mark is enter inside this drift tube, is emitted from this ion source. So the polarity of these cylindrical tubes changes with the 1/2 cycle of the AC signal provided to this system. Now see here, if these are connected with a radio frequency oscillator, and one's complete signal is represented by this, which have time period of t.
Clear? So if it is connected with this upper end, means first, third and fifth is connected with the upper end of this RF oscillator, and second, fourth and sixth cylindrical tubes are connected with the this lower terminal of this RF oscillator. Now when this provide this signal and particle just enter, then for t half time period, this complete signal is of time period of t, or half cycle is t half, time period is t half. So for t half cylindrical tubes which are 1, 3, 5th are positive, then for the next this t half cycle, this polarity will reverse. Now when this polarity reverse, now cylindrical tubes which are 2nd, 4th and 6th, they will get positive. So in this way, in every half cycle, the polarity of these cylindrical tubes will get reversed. Now see what is the principle of this linear drift tube accelerator. Now see, principle is when a positive charge particle positive charge particle accelerate when they pass through alternating radio frequency electric field, and also its principle is when this charge particle move inside hollow conductor, then electric field inside this hollow conductor will be zero. Now when there is a positive half cycle, then charge particle will accelerate, but in remaining half cycle particle will move with a constant velocity. Clear? Now see the working of this linear drift tube accelerator. किस तरह से linear drift tube accelerator particles को accelerate करता है. देखिए स्टार्टिंग से यहाँ फर्स्ट जो ट्यूब है, फर्स्ट ट्यूब पर क्या चार्ज शो किया हुआ है, पॉजिटिव. सो यहाँ क्या कनेक्टेड है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर कनेक्टेड है. तो सपोज कोई पार्टिकल फर्स्ट ट्यूब में एंटर करें कि जिस पर चार्ज सपोज नेगेटिव चार्ज है. क्लियर? अब ये फर्स्ट ट्यूब क्या है, पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट ट्यूब इस नेगेटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी और ये पार्टिकल क्या होगा, इसकी तरफ एक्सेलरेट होगा और फर्स्ट ट्यूब में एंटर हो जाएगा. अब जब पार्टिकल इस फर्स्ट ट्यूब में सपोज यहाँ प्रेजेंट है, तो इस पोजीशन पर पार्टिकल पर इनसाइड दिस सिलेंड्रिकल ट्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, एज वी ऑलरेडी नो दैट इनसाइड होलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो. सो अगर पार्टिकल इस ड्रिफ्ट ट्यूब के इनसाइड है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा और पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं होगा. अब जैसे ही ये इस फर्स्ट ट्यूब को क्रॉस करके क्या कहाँ आएगा, बिल्कुल एंड पर आएगा, तो एट दैट टाइम अगेन दिस पोलैरिटी विल रिवर्स. तो जैसे ही ये इस पोजीशन पर आएगा एट द एंड ऑफ दिस ड्रिफ्ट ट्यूब, अब उस टाइम पर फर्स्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, सेकंड पॉजिटिव, देन दिस नेगेटिव, देन दिस पॉजिटिव. तो जैसे ही ये ट्यूब क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पार्टिकल इसकी तरफ एक्सेलरेट होगा. एक्सेलरेट कहाँ, इसके जो फर्स्ट और सेकंड ट्यूब के बीच में गैप है, उस गैप के बीच में क्या होगा, एक्सेलरेट होगा और ये फर्दर क्या करेगा, सेकंड ट्यूब में एंटर हो जाएगा. अब जब सेकंड ट्यूब में एंटर होगा तो फिर से यहाँ इनसाइड ट्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और पार्टिकल क्या होगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. जैसे ही ये सेकंड ट्यूब के एंड पर आएगा, इस पोजीशन पर होगा इस टाइम पर, तो इस टाइम पर फिर से पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी. अब पोलैरिटी क्या होगी, अगेन नाउ दिस पोलैरिटी विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो जैसे ही पार्टिकल इस गैप के बीच में आएगा और ये पोलैरिटी अब फिर से पॉजिटिव हो गई, तो ये पार्टिकल ये जो सेकंड और थर्ड ट्यूब के बीच में गैप है, इसके बीच में ये फिर से एक्सेलरेट होगा, जिससे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. इसी तरह आप देखिए फिर से जब ये क्या होगा, इस सेकंड के बाद थर्ड ट्यूब में एंटर होगा, तो थर्ड ट्यूब में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा बिकॉज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. सो सिमिलरली व्हेन इट कम्स एट द एंड ऑफ दिस थर्ड ट्यूब, अब इस थर्ड ट्यूब पर फिर से पोलैरिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी. जब पोलैरिटी रिवर्स होगी देन इट इज़ नेगेटिव
पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फिर से जो पार्टिकल है वो कहाँ आ जाएगा, गैप विच इज गैप बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ जो गैप प्रेजेंट है, इस गैप में पार्टिकल फिर से एक्सेलरेट होगा और कुछ एडिशनल एनर्जी गेन करेगा और किस में एंटर हो जाएगा, फोर्थ ट्यूब में। अब फोर्थ ट्यूब में इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह से पार्टिकल एक्सेलरेट होता है किसके बीच में, इन गैप्स के बीच में। ये ड्रिफ्ट ट्यूब्स के बीच में जो गैप दी हुई है, इन गैप के हर गैप, जब भी ये एक गैप क्रॉस करेगा, देयर इज़ एन एडिशन इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जितने ज़्यादा गैप के थ्रू ये क्रॉस होगा, अकॉर्डिंगली उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए आप इस पिक्चर को देखिए, सी हेयर। यहाँ सोर्स एस से पार्टिकल एंटर हो रहा है C1 में, देन C2, C3, C4 क्या है, ट्यूब्स हैं। तो जैसे ही सोर्स से एमिट होके पार्टिकल किस पे एंटर होगा, C1 में एंटर होगा। सपोज अगर ये पार्टिकल क्या है, जब इसमें एंटर हो रहा है पार्टिकल, सपोज पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो एट फर्स्ट हाफ साइकिल दिस ट्यूब इज़ पॉजिटिव। जैसे आप देखिए कि यहाँ से AC सिग्नल आ रहा है, इस तरह से देखिए, ये है क्लियर। और ये कंप्लीट टाइम पीरियड कितना है, T टाइम पीरियड है। सो T हाफ टाइम पीरियड के लिए ये क्या है, C1, C3 एंड C5 विल बी पॉजिटिव। और पार्टिकल जो यहाँ से एंटर हो रहा है, ये पार्टिकल C1 ट्यूब की तरफ अट्रैक्ट होगा और किस में एंटर हो जाएगा, C1 ट्यूब में। अब इसके बाद जैसे ही ये C1 ट्यूब से बाहर आएगा, इट इज़ एट द बाउंड्री ऑफ दिस ट्यूब। इस ट्यूब की बाउंड्री पर पोलैरिटी फिर से रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि अब नीचे वाला साइकिल आ जाएगा, ये साइकिल नेगेटिव साइकिल। तो जैसे ही ये नेगेटिव साइकिल आएगा, अब इस नेगेटिव साइकिल के लिए जो ट्यूब है क्या हो जाएगी, C1 ट्यूब क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और C2 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो जैसे ही ये ट्यूब पॉजिटिव होगी और पार्टिकल C1 ट्यूब के एज पर आएगा, ये इस गैप के बीच में क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। और जैसे ही ये एक्सेलरेट होगा, किस में एंटर कर जाएगा, C2 में। मीन्स अगर इनिशियली ये V वेलोसिटी से मूव हुआ है, तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V डैश, इट विल इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस वैल्यू। तो इस गैप के बीच में पार्टिकल क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। इसी तरह जब ये इस गैप के थ्रू जाएगा, तो ये इससे भी वेलोसिटी और इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह जब ये इस गैप में जाएगा, तो इससे वेलोसिटी और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप यहाँ से देखिए कि जैसे जैसे ये गैप के थ्रू ट्रेवल हो रहा है, अकॉर्डिंगली इसकी जो वेलोसिटी है उसमें फर्दर इंक्रीज़ हो रहा है। So this is how this drift tube accelerate by changing the polarity of the cylindrical accelerator at a particular time. क्लियर। तो यहाँ जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है इन गैप्स के बीच में, इन गैप के इसके बीच में जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो क्या होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं। आप यहाँ से देखिए कि जो ट्यूब्स ली गई हैं, ये ट्यूब्स क्या है, इंक्रीजिंग लेंथ में है। फर्स्ट ट्यूब की लेंथ जो है सेकंड से कम है, इसी तरह सेकंड की थर्ड से, या फिर ये कहें कि जो सेकंड ट्यूब है उसकी लेंथ फर्स्ट से ज़्यादा है, थर्ड ट्यूब की लेंथ सेकंड से ज़्यादा है, फोर्थ की लेंथ थर्ड से ज़्यादा है। तो ऐसी अरेंजमेंट क्यों चूज़ की गई है, जिसमें कि जो ड्रिफ्ट ट्यूब अरेंज की गई हैं वो क्या है, इंक्रीजिंग लेंथ में। आप यहाँ से देखिए कि जब पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, तो जब पार्टिकल सोर्स से एमिट होने के बाद किसमें, C1 ड्रिफ्ट ट्यूब में एंड C1 सिलेंड्रिकल ट्यूब में एंटर हो रहा है, और एंटर होके जब इस एज पर आएगा, तो इस गैप के बीच में एक्सेलरेट होगा। तो अगर ये V वेलोसिटी से इंसिडेंट किया गया है, तो जब ये इस गैप को ट्रेवर्स करके C2 ट्यूब में एंटर करेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट जो हमने सिग्नल लगा रखा है, सिग्नल क्या है, ये जो AC सिग्नल अप्लाई किया हुआ है, इस AC सिग्नल की जो पोलैरिटी है ये T हाफ के बाद चेंज हो रही है। तो इट मीन्स कि जैसे ही पार्टिकल इस एज पर आए, एज पर आते ही सिलेंड्रिकल ट्यूब्स की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो इट मीन्स कि एक कांस्टेंट टाइम ट्रेवर्स होना चाहिए किसके बीच में, इन ड्रिफ्ट ट्यूब्स के बीच में, ताकि जो फ्रीक्वेंसी या पोलैरिटी जिस तरह चेंज हो रही है, जो पार्टिकल है उसके सिंक्रोनाइजेशन में रहे। तो ऐसा किस तरह से होगा कि अगर यहाँ से देखिए कि पार्टिकल इन
ट्यूब्स के बीच में कितने टाइम के लिए रहेगा, हर एक ट्यूब के बीच में। अगर ये टी टाइम कांस्टेंट है, ये क्या टाइम है, दिस इज टाइम ऑफ टी हाफ, मींस हाफ साइकिल के लिए ये हर एक ट्यूब में रहेगा। अब देखिए यहाँ वेलोसिटी कम थी, क्लियर। क्या फॉर्मूला होता है इसका, लेंथ का, लेंथ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू में टाइम। अब देखिए यहाँ से वेलोसिटी, टाइम तो कांस्टेंट है, मींस कांस्टेंट टाइम के लिए ये हर एक ट्यूब में रहेगा। अब मगर जैसे ही ये एक गैप क्रॉस कर रहा है वेलोसिटी में इंक्रीज होता जा रहा है, तो अगर वेलोसिटी में इंक्रीज है और हमें टाइम को कांस्टेंट रखना है तो कोरस्पॉन्डिंगली लेंथ में इंक्रीज होता जाएगा। तो इसीलिए ड्रिफ्ट ट्यूब एक्सेलेरेटर में ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स ली गई हैं ये क्या है, इंक्रीजिंग लेंथ में है। क्लियर, आई विल रिपीट अगेन। आप देखिए यहाँ एसी सिग्नल पास किया हुआ है, दिस इज, जिसका टाइम पीरियड क्या है टी, और हर टी हाफ टाइम के बाद इन सिलेंड्रिकल ट्यूब्स की पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर, तो पार्टिकल इन गैप्स के बीच में एक्सेलरेट होगा, पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप यहाँ से देखिए लेंथ किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो अगर पार्टिकल हर ट्यूब में टी हाफ टाइम के लिए रहे, क्यों, क्योंकि टी हाफ टाइम के बाद फिर से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अगर टाइम को कांस्टेंट रख रहे हैं, अगर वेलोसिटी में हर बार इंक्रीज हो रहा है, तो कोरस्पॉन्डिंगली हमें इंक्रीजिंग लेंथ की ट्यूब लेनी पड़ती है ताकि टाइम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्लियर, सो इन दिस वे दिस पार्टिकल एक्सेलेरेटर वर्क। See here, this time t is constant, so this time t is constant, so as velocity of ion increasing, correspondingly length of this cylinder is have to increase. So see some theoretical consideration of this linear accelerator. Suppose particle which is to be accelerated has charge of q एंड मास ऑफ m, और जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है सक्सेसिव ट्यूब्स के बीच में, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज v। क्लियर, और पार्टिकल कि जो चार्ज पार्टिकल है जिसे एक्सेलरेट किया जा रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करें, v से रिप्रेजेंट करें, तो जितने ट्यूब्स के थ्रू ये पास होगा, मीन्स जितने गैप्स के थ्रू पास होगा, अकॉर्डिंगली उसकी वेलोसिटी में उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ट्यूब्स थ्रू विच इट इज़ पासिंग। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन किसके इक्वल हो जाएगी, अगर ये वेलोसिटी है कि nth ट्यूब को क्रॉस करने के बाद अगर पार्टिकल की ये वेलोसिटी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, हाफ m v n स्क्वायर के इक्वल होगी। क्लियर, और पार्टिकल किस तरह से एक्सेलरेट हो रहा है या एनर्जी गेन कर रहा है, जब वो इन गैप्स के बीच में क्या करता है, एक्सेलरेट होता है। जब इन गैप के थ्रू ट्रेवल होगा तो क्या, किस तरह से, कि जब ये एंटर हुआ था, सपोज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और C1 ट्यूब क्या है, पॉजिटिव है, C2 क्या है, नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। क्लियर, तो ये पार्टिकल क्या होगा, C1 में एंटर होगा और जैसे ही ये ट्यूब के एज पर आएगा पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, और पोलैरिटी रिवर्स होगी तो उस केस में ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पार्टिकल क्या होगा, अगेन C2 की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये क्या करेगा, C2 ड्रिफ्ट ट्यूब में एंटर होने के बाद सेम टाइम के लिए C2 में रिजाइड करेगा जितने टाइम के लिए C1 में रहा था। तो जैसे ही ये पार्टिकल C2 के एज पर आएगा फिर से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये फिर से C3 की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जैसे ही ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये इस गैप के बीच में क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। बट ट्यूब के अंदर एंटर होने के बाद वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनसाइड होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। क्लियर, सो इस गैप्स के थ्रू जो ये एक्सेलरेट हो रहा है और हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है, v पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो कितनी एनर्जी गेन कर रहा है हर गैप के थ्रू पास होने के बाद, ये किस पे डिपेंड करता है कि इस पार्टिकल पे चार्ज कितना है और हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है। ऑल्सो कि ये कितने गैप्स के थ्रू पास होगा, तो ये एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, NQV के इक्वल आ जाएगी। दिस इज़ द एनर्जी विच इज़ इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। अब यहाँ से देखिए कि अगर ये n ट्यूब्स के थ्रू क्रॉस हो रहा है, q इसके पर चार्ज है और v पोटेंशियल डिफरेंस है, देन q इंटू वी इज़ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज़ इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज पार्टिकल विच इज़ हाफ m v n स्क्वायर। क्लियर,
सो यहाँ से वी एन निकाल सकते हैं हम, तो वी एन इज़ द वेलोसिटी of particle after traversing through n gaps. This is equals to twice of this Vn is equals to twice of n q v over में m under root. So in this way we can evaluate the velocity of particle which is traveling along such n gaps. Clear? यहाँ से देखिए ये हमने ये देखा कि काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला, इसके साथ आप देखिए एक के कांस्टेंट भी ऐड किया गया है। ये के कांस्टेंट क्यों ऐड किया गया है? क्योंकि जब पार्टिकल इस सोर्स से, यहाँ देखिए आप, इस सोर्स से जब ये पार्टिकल एंटर होगा फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब में, इस फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब में, उस टाइम पर भी इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो उस काइनेटिक एनर्जी की टर्म को भी यहाँ ऐड किया गया है कि सपोज कि एन गैप ट्रेवर्स करने के बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv_n²। और जब इनिशियली ये फर्स्ट ट्यूब में एंटर हुआ था इसके पास तब भी कुछ एनर्जी थी, और दैट इज़ रिप्रेजेंटेड विद कांस्टेंट k. सो फॉर द precise calculation of this kinetic energy, this k constant is also included inside this equation. So according to this, now kinetic and velocity of this particle after traversing through n gap will be equal to twice of n q v plus k over में m का m under root. Clear? Now see what will be the length of nth सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड। जो हमने ड्रिफ्ट ट्यूब्स लगाई हैं, इन ट्यूब्स की लेंथ किसके इक्वल होगी? आप एज वी नो ऑलरेडी दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो यही फॉर्मूला है, देखिए दिस इज लेंथ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू में टाइम। क्लियर? क्योंकि जो पार्टिकल है वो हर एक ट्यूब में एक कांस्टेंट टाइम के लिए रिसाइड कर रहा है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्योंकि हर टी हाफ टाइम के बाद पोलैरिटी क्या हो रही है, देखिए पोलैरिटी क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। तो ये जो पार्टिकल C1 ट्यूब में एंटर हुआ है, ये पार्टिकल सेम टाइम के लिए हर ट्यूब में रिसाइड करेगा। मीन्स ये अगर C1 है, ये C2 है, C3 है, C4 है, तो C1 में जितने टाइम के लिए रहेगा उतने टाइम के लिए ही C2 में रहेगा। ठीक, तो कोरस्पॉन्डिंगली अगर टाइम कांस्टेंट है विच इज़ इक्वल्स टू टी हाफ, मीन्स हाफ टाइम पीरियड ऑफ साइकिल विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, देन दिस टाइम is when multiplied with the velocity of particle will give the distance traveled by this particle. Clear? So after traversing n gap, now length of nth electrode will be equal to ln. So अगर टाइम कांस्टेंट है और वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है हर एक गैप को क्रॉस करने के बाद, तो कोरस्पॉन्डिंगली लेंथ को भी इंक्रीज करना पड़ता है, ताकि जब पार्टिकल एक पर्टिकुलर ट्यूब से पास होने के बाद उसके एज पर आए तो यहाँ पोलैरिटी रिवर्स हो जाए। क्लियर? सो वी एन क्या है, वेलोसिटी। इस फॉर्मूला को अगर हम लेंथ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, देन लेंथ विल बी इक्वल टू 1/2। जो यहाँ टाइम पीरियड लिया गया है, देखिए यहाँ से इस टाइम पीरियड को, ये टाइम पीरियड, दिस इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, सो टाइम इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ इसे फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ वी एन की वैल्यू पुट कर दें तो हमें कॉरस्पॉन्डिंगली लेंथ मिल जाएगी। क्लियर? देखिए, सो दिस इज द लेंथ ऑफ nth सिलेंड्रिकल ट्यूब। आप यहाँ से ये देखिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, चार्ज ऑन द पार्टिकल इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब इज प्रोपोर्शनल टू n टू अंडर रूट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम फर्स्ट ट्यूब देखें तो फर्स्ट की लेंथ कितनी है 1, सेकंड की किसके प्रोपोर्शनल होगी √2, थर्ड की किसके प्रोपोर्शनल होगी 3, फोर्थ की √4। सो अगर हम इनकी रेशियो निकालें, फर्स्ट सेकंड की फर्स्ट के साथ, थर्ड की सेकंड के साथ, तो कोरस्पॉन्डिंगली ये शो कर दे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं, ये फर्स्ट सेकंड ट्यूब की √2, थर्ड की 3,
फोर्थ की √4, तो ये रेशो किस तरह होगी, √2:1, √2:1 इन कंपैरिजन विद द फर्स्ट ट्यूब। तो हर एक ट्यूब के बीच के गैप को कवर करने के बाद जो ट्यूब की लेंथ है वो कॉरस्पॉन्डिंगली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। So you can see here how the polarity of this drift tubes will reverse after half cycle of the wave. Here ion is positive when it enter in first, then after that it is after traversing through first tube to second tube, the length of the drift tube will increase according to ratio we had evaluated here, which is proportional to n root. Clear? So what are the advantages of using linear accelerators instead of that electrostatic accelerator like Van de Graaff generator, tandem accelerator? लीनियर एक्सेलेरेटर्स के थ्रू पार्टिकल्स ट्रैवल हो सकते हैं थ्रू हाई फ्रिक्वेंसी पार्टिकल with the help of linear accelerator we can accelerate these particles to high energy in comparison with the electrostatic particle accelerators. With the help of these linear accelerator we can have a very high beam intensity, which is further used for the nuclear experiments. And also one of the importance of this linear accelerator is that it is easy to extract the beam from the device. But there are also disadvantage of this linear accelerator is that if you see after traversing through each gap, the length of this tube goes on increasing. So because of increase in this length, it is difficult experimentally, it is difficult to maintain and also it is with the increase in the length of tube after each gap, it is difficult to maintain vacuum in such large chamber. So this is the main disadvantage of this linear drift tube accelerator.